Very good morning, students of class 10th. Here I am Poonam Prasad again with the subject geography of your social science. The chapter number 1, resource and its development, and with the continuation part of our topic, major topic, land resources, land as resources. In this we are going to deal with the land utilization, or what we can say, the land pattern utilized in India. Students, let's we start with our class. Land utilization, if we are talking about its meaning, then human beings have utilized the land with the help of technology, in the terms of money, according to their usages or according to their need. Example, it utilizes the land for their settlement, human settlement, for construction purpose, for transportation, for agriculture, mining, etc. So when the land are in use, or the land resources are in use, it is called as land use. Children, I have already told you in our previous slide that India is, if we are talking about the geographical portion of India, geographical area of India, then it comprises of your 3.28 million square kilometer. When we are surveyed the entire country, but some portions are left unsurveyed. Example, Jammu Kashmir, that region which are occupied by Pakistan and China, and some of the regions of your northern eastern states, like if you are talking about Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Mizoram, it cannot be come under of your surveyed, yet the surveyed are going on. Fine. So thus the land, whatever it is utilized in India, are 93% of the total geographical area of the India. Fine, students. So this is all about your land utilization. If we are talking about the uses of land in India, basically it is divided among some patterns. Like if we are talking about first, it is called as NSA and the GSA, which includes in NSA. The second is called as forest. We all know about that forest coverage are quite important, and forest is the is that natural resources which are which played a very vital role in the survival of the human beings. Some lands which are not available for the cultivation, some lands other than uncultivated land, and the last type of land is called as fallow land. Fine, students. So these are some lands which are called as a land pattern. बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक का मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि दिस लैंड फॉर्म जो है हम लोग का लैंड पैटर्न जो है वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. बट टुमारो आई वुड लाइक टू टेक द रेस्ट ऑफ द land utilization, portion of the land utilization, along with land degradation and land conservation. Fine. So let's we talk on the first different features of the land patterns. If you are talking about the net zone area, children, net zone area is very important, because this is only the area which is utilized for the agriculture purpose. It is known to be the important land pattern of India, because यही आपको फूड या यही हमें फूड देता है हमारे, which is important for the human survival. When the same area, that area जो कि NSA आता है, net zone area, उसको हम अगर दोबारा उसको कल्टिवेट करते हैं, when the same area is ploughed more than once in an agriculture year, then it is called as gross sown area. Is that clear, students? So
gross, if we are talking about the portion of the net sown area in India, it is nearly 139.93 million hectares, or you can say of the total land area to be utilized, it has come to 45.74%. Fine. And it is quite important, as I have already told you. Children, there is a question arises that why do we need to cultivate the area, same area, once in a agriculture, more than once in an agriculture year? हम एक से ज़्यादा क्यों हम उस पर्टिकुलर लैंड को वापस से कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हमें पता है कि अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वी आर गोइंग टू लूज़ द फर्टिलिटी ऑफ दैट सॉइल. बट रीज़न ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, और एक तरफ जहाँ पॉपुलेशन को फीड कराना है वहीं पे, या पॉपुलेशन को फूड क्रॉप्स प्रोवाइड करने हैं, पॉपुलेशन की डिमांड्स को फुलफ़िल करना है, वहीं पे इंडस्ट्रीज़ को भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है. ये वो इंडस्ट्रीज़ होती है जिसका जो बेस है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि आपका शुगर मिल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब. तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, है ना. तो इनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज द GSA. दस GSA, हाउ कैन द GSA बी इंक्रीज्ड? यानी GSA कैसे इंक्रीज हो सकता है बेटा? GSA कैन बी इंक्रीज्ड by expanding the agriculture or expanding the irrigation facilities. ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर सिंचाई सुविधा प्रदान करके, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, और यू कैन से द क्रॉप रोटेशन मेथड विच इज़ अ साइंटिफिक इन इट्स यूज़, एंड यूजिंग द मैन्योर ऑफ द using the manure students, using manure and fertilizers, and by applying the scientific approach to the agriculture. If we are talking about these lines, अगर हम इसके बारे में ये कहें कि we are bound to go for the GSA just to feed the large population, demands of for the large population. On the other hand, हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड लिमिटेड है बेटा, और उसी लैंड को अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें ये भी पता है ऑन द वन हैंड कि हम ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड को इस्तेमाल करेंगे तो इट लॉसेस, और यू कैन से इट लॉस देयर फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वी आर नॉट एबल टू फीड आर लार्ज पॉपुलेशन. इसके अलावा हमें सिर्फ पॉपुलेशन को ही खाना नहीं देना है, फूड क्रॉप्स नहीं देने, हमें उन इंडस्ट्रीज़ को भी उनकी डिमांड्स फुलफ़िल करनी है जिनका आधार, जिनका बेस ही क्या है, दैट इज़ योर एग्रीकल्चर. सो वी हैव टू फीड द एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज टू. फाइन. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पोर्शन इज रिलेटेड विद द फॉरेस्ट. फाइन चिल्ड्रन. Forest, as we already know that it is the national wealth भी and natural beauty भी है. So according to the National Forest Policy, it was in the year of 1952 it was implemented. उसके हिसाब से इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 33% should be covered under the forest, right? But these forest coverage is declining day by day. क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेस्ट क्यों ख़त्म हो रहे हैं? ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट बाय द ह्यूमन बीइंग, क्लियरेंस ऑफ द फॉरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, क्लियरेंस ऑफ द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, दीज आर द ह्यूमन एक्टिविटी, राइट बेटा. तो इसके वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट एरियाज वो डिक्लाइन हो रहे हैं. इसीलिए हमें इसको क्या करना है, वी हैव टू जस्ट प्रोटेक्ट इट आउट. Because this maintains the ecological balance, it protects your biodiversity, it maintains the livelihood of the tribal people, and due to this it saves the
cultural diversity. It means that the forest played a very, very important role in human life, or you can say to sustain or to maintain the ecological balances, we need what? Forest. टेम्परेचर का वेरिएशन, रेनफॉल का अकरेंस, प्रेसिपिटेशन का, और यू कैन से इट गिव्स अ सिनिक ब्यूटी, मेडिसिनल प्लांट प्रोवाइड कर रहा है, ये वुड प्रोवाइड कर रहा है, रबर्स, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज द मेजर प्रोडक्ट जो कि कहाँ से आ रहे हैं? फॉरेस्ट. तो अगर हम फॉरेस्ट का क्लियरेंस देंगे तो अल्टीमेटली, और आपको भी पता है कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत जो है, सोर्स जो है, वो क्या है? दैट इज़ योर फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट का यूटिलाइजेशन हमें करना है, लेकिन जो हमें प्रोपोर्शनेट है, हमारा जो प्रोपोर्शन है दैट इज़ योर 33%, दैट शुड बी मेंटेन्ड. उससे ज़्यादा हो बट उससे कम ना हो. इज़ दैट क्लियर? So this is about the land pattern. Students, the third type of land utilization is called as the land which is not available for the cultivation. ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला, अगर हम इसको बात करें बैरन और वेस्टलैंड की, बैरन और वेस्टलैंड एज द नेम, जिसको हम कहते हैं ना बंजर ज़मीन, है ना बेटा. तो ये बैरन और वेस्टलैंड है. ये बैरन वेस्टलैंड वो इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट प्रोडक्टिव है, जैसे रॉकी टेरेनियन, मार्शी एरिया, दलदली क्षेत्र, या बहुत ज़्यादा जो पठारी भाग है, या जो आपके मरुस्थली भाग है, यू हैव विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग. लेकिन इस मैन जो ह्यूमन बीइंग्स है, समटाइम्स ये बैरन लैंड तो खैर है ही है, बट it creates, the human beings create wastelands with the help of their human activity, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, डंपिंग इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट हो गया. इसके अलावा और भी एरियाज़ हैं विच आर, जैसे कि हमने कहा कि एग्रीकल्चर, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर टेक्निक्स आर देयर, जिसके कारण वो एरिया या वो जो लैंड है इट बिकम्स योर वेस्ट लैंड विच कैन नॉट बी economically productive, right? If you're talking about the next land which is put to non-agriculture, or you can say non-agriculture uses, तो इसमें वो सारे आ जाएंगे पोर्शन जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा बिल्डिंग्स के लिए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस इज़ देयर, रोड्स आर देयर, some stadiums, industries, historical or you can say monuments are there. So that वो भी कहीं ना कहीं ज़मीन पे ही बना है. लेकिन ये वो लैंड्स है जिसका इस्तेमाल हमें एग्रीकल्चर के लिए नहीं करना है, ठीक है. तो स्पेसिफिकली इन पोर्शंस में, इस पर्टिकुलर लैंड पैटर्न में हमने क्या देखा? दो टाइप्स के लैंड है विच इज़ नॉट यूज फॉर द कल्टिवेशन. पहला बैरन और वेस्टलैंड, दूसरा लैंड विच पुट टू non-agriculture uses, right? The fourth is, we are talking about other uncultivated land which is called as fallow land, which exclude the fallow land. बेटा इसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे आपको फेलो लैंड्स पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फेलो लैंड्स का मतलब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद वाले स्लाइड में देखेंगे. तो कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं जिसको हम लोगों ने जिस पे हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा, अदर देन फेलो लैंड्स. तो हम कुछ ऐसे लैंड्स हैं विच आर अनकल्टिवेटेड, लाइक परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड्स. परमानेंट पैस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय में द ग्राउंड्स आर अवेलेबल टू फीड द कैटल, यू कैन से. तो पैस्चर लैंड्स हम लोग उसको ग्रेजिंग लैंड्स कहते थे. Pasture lands and grazing lands are declining day by day. Nearly 3.35% of total land is utilized here by according to 2012-13. अगर pasture lands या grazing lands कम होंगे बेटा, तो इसका सीधा असर किसके ऊपर पड़ेगा? हमारी कैटल पॉपुलेशन, क्योंकि भारत का एनिमल हस्बेंड्री भी एक क्वाइट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी है, जिससे कि वी कैन गेन व्हाट? इकोनॉमिक वैल्यूएबल है, इकोनॉमिकल वैल्यूएबल है. विच वन? द एनिमल हस्बेंड्री ऑक्यूपेशन, राइट बेटा.
So cattle is quite important for our you can say the part of our life. तो अगर हम वो खाना नहीं खा पाएंगे, अगर उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके फीडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो नहीं उन फुलफ़िल कर पाएंगे, तो हाउ कैन दे सर्वाइव, हाउ कैन वी मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉडर एनिमल्स दैट विच आर. सो आजकल की डेट में क्या हो रहा है, ये फार्मिंग लैंड्स तो ये पैस्चर लैंड्स या ग्रेजिंग लैंड्स तो कम हो रही है. तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसके लिए हम लोग जो भूसा चारा ये है उसी से हम लोग काम चला रहे हैं, है ना. तो इट इज़ कंपैरेटिवली इट इज़ डिफरेंट और इट इज़ डिक्लाइनिंग डे बाय डे अगेन. और इसका डिक्लाइन होने का कारण क्या है बेटा, इसका डिक्लाइन होने का कारण अगेन ह्यूमन एक्टिविटी है, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लैंड बाय द ह्यूमन बींग्स. पैस्चर लैंड्स अब उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग पे. ये भी एक कारण है. क्वेश्चन आ सकता है वाई द पैस्चर लैंड्स आर डिक्लाइनिंग डे बाय डे. तो उसमें से कुछ तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताया, उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ह्यूमन आर यूटिलाइजेज द पैस्चर लैंड्स फॉर देयर सेटलमेंट, फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, for farming, or to convert the pasture land into the agricultural land, right beta. Next, if you are talking about the some lands which are under the orchids like tree plantation, some lands are called as cultivable wastelands. ये वो lands होते हैं जिनको हम लोग 2 साल के लिए या 5 साल के लिए हम लोग छोड़ देते हैं. You have heard about शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जूमिंग कल्टिवेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है. जो ट्राइबल पीपल होते हैं दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसके लिए सबसे पहले दे गो फॉर द स्लैश एंड बर्न. जो उनकी ज़मीनें होती है उसमें से जो क्रॉप्स लेके फिर उसको उस ज़मीन को क्या कर देते हैं, वो लोग जला देते हैं. तो उसके वजह से वो लैंड कम से कम टू रिगेन द फर्टिलिटी वो ऐसा करते हैं. इसके लिए वो नेचुरली इट इज़ द लैंड रिगेन इट्स फर्टिलिटी. तो उसके लिए क्या होता है बेटा, उस लैंड को वो वेस्ट चला जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड. दैट कल्चरेबल वेस्ट लैंड इज़ नाउ यूटिलाइज्ड बाय द फार्मर्स एंड बाय द गवर्नमेंट efforts. Again, this can be converted into the agriculture purposes, right. So this is what we called it as some lands which are excluding from fallow lands. It means that some lands which are other than uncultivated land. The last one is called as the fallow lands. Students, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि fallow land का मतलब क्या होता है. ये एग्रीकल्चर लैंड है जिसको हम लोग कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों तक हम इसको छोड़ देते हैं. क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी सॉइल फर्टिलिटी रिगेन, मतलब जो सॉइल है वो नेचुरली अपनी फर्टिलिटी रिगेन कर रही है. पहले ऐसा होता था, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है. अगर इस तरह से हम अगर लैंड्स को छोड़ते रहेंगे तो उसका सीधा असर किसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लैंड तो लिमिटेड है लेकिन डिमांड्स फूड ग्रेन की या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की वो बढ़ रही है. तो उनके डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो परसेंटेज ऑफ फेलो लैंड्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू द एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट एज वेल एज द फार्मर. उन्होंने क्या किया है इस फेलो लैंड को, क्योंकि फेलो लैंड को कुछ समय के लिए या कुछ महीनों तक के लिए उसको छोड़ना ज़रूरी बन जाता है. तो अब बाय साइंटिफिक मेथड्स या क्रॉप रोटेशन या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के द्वारा जो फेलो लैंड्स है वो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. कारण यही है कि हमें पॉपुलेशन को फीड और पॉपुलेशन के डिमांड्स को फुलफ़िल करना है. ऑन द अदर हैंड हमें एग्रीकल्चर को फुलफ़िल करना है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को. इसके अलावा जो फार्मर्स है, क्योंकि फार्मर्स का ऑक्यूपेशन सीजनल हो जाता है, तो अगर ये पूरे साल भर फार्मर्स काम करते रहेंगे तो फार्मर्स, इट कीप्स द फार्मर बिजी एंड द फार्मर्स बिकम एम्प्लॉयड, राइट. इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप आएगा तो सीधा असर इसके ऊपर किसके ऊपर पड़ेगा बेटा,
जनरेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जनरेट होगी, बेनिफिट्स मिलेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसको, फार्मर्स को और उस पर्टिकुलर एरिया को। तो फेलो लैंड को हमें ना छोड़ते हुए उसको क्या करना है बेटा, वी कैन यूटिलाइज इट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस। अगर हम बात करते हैं कि फेलो लैंड्स कितने तरह के होते हैं, तो फेलो लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट। एक तो होता है करंट फेलो लैंड, जिसको हम लोग कुछ समय के लिए फ्यू मंथ्स टू 1 एग्रीकल्चर ईयर हम उसको छोड़ते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा जिसको हम लोग 1 साल से ज़्यादा यानी तकरीबन 5 साल तक उस एग्रीकल्चर लैंड को छोड़े रखते हैं जस्ट टू रिगेन द फर्टिलिटी, देन इट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज द other than current fallow land. Is that clear? So these are the important distribution of, you can say, land pattern in India. और फीचर्स हैं बेटा, इसमें से यूजुअली आपका GSA NSA आता है, या आपसे फॉरेस्ट पे वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, या फिर आपका फेलो लैंड पे। ये 3 इंपॉर्टेंट है, GSA NSA, फॉरेस्ट एंड लास्ट वन इज़ योर फेलो लैंड। तो आपको इसको याद रखना है, यू हैव टू रिवाइज इट, वॉच द वीडियो एंड द नेक्स्ट जो हम लोग कल पढ़ेंगे, दिस इज़ अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन एंड सम पोर्शंस ऑफ योर लैंड यूटिलाइजेशन, राइट बेटा। टिल देन टेक केयर एंड रिवाइज योर टॉपिक। बाय बेटा।